Business regulatory framework. In this subject today, friends, we are going to start with Unit 3 Indian Contract Act 1872. After successfully completing general contracts, now we are moving towards special contracts and the weightage is 25% of Unit 3. Today, friends, a new chapter we are going to start and the chapter's name is Indemnity and Guarantee Contracts. Let us see what type of questions can be asked to you, can be demanded to you in the exams. Define indemnity contract, explain the essential elements of indemnity. So let us understand first what exactly is indemnity with the help of its introduction. The contract of indemnity and guarantee, friends, are special kinds of contracts. Since these are specific types of contracts, all the general principles of contracts are fully applicable to such contracts. All the general principles of contracts are fully applicable to such types of contracts. Therefore, they must have all the essentials of a valid contract, which we have already covered in general natures of contract, that the contract must have object, the object must be lawful, it must have consideration, and the consideration must be lawful. Consent is must, and consent must be taken freely of the parties, etc. All the essentials of a valid contract must be present while making either indemnity contract or we are going to cover in guarantee contract. These essentials is must in this special contracts also. So the rules of general contracts also applies to special contracts, which we have already learned in Unit 1, essentials of valid contract, as per section 10. However, the legal provisions relating to the contracts of indemnity and guarantee are provided in section 124 to 147 of Indian Contract Act 1870. इस पर्टिकुलर चैप्टर की जितनी भी प्रोविजंस है, लीगल प्रोविजंस, जितने भी रूल्स है, कंडीशंस हैं, प्रोविजंस हैं, वो सेक्शन 124 से लेकर 147 तक तकरीबन 24 सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर जो इन पे लागू पड़ते हैं. Let us try to understand what exactly is indemnity contract with the help of definition. The help of definition. So the term indemnity, contract of indemnity, or we can say indemnity contract means, let us try to understand its definition. It is defined under section 124 of Indian Contract Act. Let us see. A contract by which one party promises to save the other. One party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person, that may be the third party, is called a contract of indemnity. So what exactly is indemnity contract? Indemnity, the other name of indemnity is, sir, to compensate other. To compensate other. एक व्यक्ति को अगर नुकसान हो जाए तो उस नुकसान से उसको बचाना है और ऐसा वचन दिया जा रहा है. A contract by which one party promises to save the other from losses. एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को लॉसेस से बचाने की उसे प्रॉमिस दे रहा है, I will save you from the losses. I promise to save you from the losses. अब ये लॉस किसकी वजह से हो रहा है, कौन उसका जिम्मेदार व्यक्ति है? तो इट मे बी कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, यानी प्रॉमिसर की कोई हरकत से ये लॉस हुआ हो, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या कोई थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉमिसी को नुकसान हुआ हो. नुकसान हो किसे रहा है, सर? प्रॉमिसी को. हु इज द सफरर, हु इज बेरिंग द लॉस? सर, प्रॉमिसी इज बेरिंग द लॉस. लॉस प्रॉमिसी को हो रहा है और उसकी भरपाई देने का वचन कौन कर रहा है, सर? प्रॉमिसर कर रहा है. प्रॉमिसर भरपाई कब करने की बात कर रहा है?
जब उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ हो तो, या कोई और पर्सन की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से भी नुकसान हुआ हो तो वो भरपाई करने के लिए तैयार है। इस तरीके का अगर अरेंजमेंट किया जाए, इस प्रकार का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है सर, तो उसे हम इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान से बचाने का वचन देता है। अगर मुझे सरल शब्दों में लिखना हो व्हाट इज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट या व्हाट इज इंडेमनिटी, द टर्म इंडेमनिटी सिंपली मीन्स make good the loss, or we can say compensate the party who has suffered from such some losses। जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ हो उस नुकसान की भरपाई करके देना, उसे कॉम्पेंसेशन देना। तो वहां पे इस तरीके से एक बंदा दूसरे बंदे को बचाने की कोशिश कर सकता है। पार्टीज टू इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी पार्टीज होती है सर? देयर आर टू पार्टीज इन केस ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। द पर्सन who promises to compensate for the loss, person who promises to compensate for the loss is called the indemnifier। शब्द का ध्यान रखना है, स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है। यहाँ मैंने कहा था स्पेशल पार्टीज आएगी, कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल है, पार्टीज के नेम भी स्पेशल है, तो वो आपने फॉलो करना है, वैसे ही लिखना है। The person who promises to compensate for the loss is called the indemnifier, या हम उसे प्रॉमिसर भी कह सकते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम प्रॉमिसर और प्रॉमिसी शब्द को यूज कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट ऐसा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है, इसके लिए हम प्रॉमिसर प्रॉमिसी शब्द यूज कर सकते हैं। तो जो बंदा वचन देता है कि नुकसान की भरपाई करके देगा, उसे इंडेमनीफायर कहते हैं। The person to whom this promise is made or whose loss to be made good is known as indemnity holder, or it can be said as indemnified, या तीसरा नाम है promisee भी कह सकते हैं। जिसे वचन दिया जा रहा है कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो हम आपको नुकसान से बचा लेंगे, तो उसे हम इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जेके कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई। इंडेमनिफाई समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने कॉम्पेंसेट लिखा है ब्रैकेट। कॉम्पेंसेट भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भगवान बचाए आपको। जेके कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई एके against the consequences of any proceedings which VK may take against AK in respect of a certain sum of money. This is a contract of indemnity. Here JK is indemnifier and AK is indemnified. JK प्रॉमिस कर रहा है एक तरीके से एके को, जेके प्रॉमिसर है मींस इंडेमनिफायर है, और एके जो है इंडेमनिफाइड है, प्रॉमिसी है। जेके कॉन्ट्रैक्ट करता है एके के साथ और कहता है कि अगर वीके ने आप पे केस किया, कोई भी लीगल एक्शन लिया, और उसमें अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो मैं उसकी भरपाई आपको करके दूंगा। आई विल इंडेमनिफाई। जेके एके से कहता है, और वीके जो है थर्ड पार्टी। वीके अगर एके के ऊपर केस करके कोई लीगल एक्शन लेता है एके के ऊपर, और उस लीगल एक्शन से एके को कोई नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान की भरपाई जेके करने के लिए तैयार है। ऐसी अरेंजमेंट्स अगर होती है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आप चलते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पहला आता है प्रेजेंस ऑफ ऑल एसेंशियल्स ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रेजेंस ऑफ ऑल एसेंशियल्स ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स का समावेश इसके अंदर हो जाता है। हमने 11 एक एसेंशियल्स पढ़े थे, वो सारे के सारे आप यहाँ लिख सकते हैं, इस पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं, सबकी दो दो लाइन लिख सकते हैं। That in case of indemnity contract also there are two parties where one person makes offer, the other person makes its acceptance. The object must be present while making such contract. The object must be lawful. Consideration must be there. The consideration must be lawful. All the parties to such contract must be competent to enter into a valid contract. Consent must be taken. Consent must be taken freely. Such type of contract should not be a void contract.
देयर शुड बी ए सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। वो सारे के सारे पॉइंट्स की दो दो लाइन आप इस पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं। यानी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहली शर्त यह है कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट की मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की, पार्टीज कितनी होती है सर? दो पार्टीज होती है, वन पार्टी इज इंडेमनिफायर, द अदर पार्टी इज इंडेमनिटी होल्डर। इसकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे की थी, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर 3 है सर इंडेमनिफायर्स रिस्पॉन्स। इंडेमनिफायर मीन्स प्रोमिसर्स रिस्पॉन्स। जिसने वचन दिया उसकी जिम्मेदारी क्या है, किस चीज की जिम्मेदारी है सर? और यूं कहा जाता है द प्रोमिसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्राइमरी। He is the independent person who is supposed to perform his promise in case if the promisee suffers loss. In case if the promisee suffers any loss. So indemnity is restricted to those cases only in which the loss required to be compensated is either caused by the conduct of the promiser himself or of any other person. The loss must be such as the promisor or indemnifier has taken upon himself to indemnify. यानी इंडेमनीफायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने जो भी लॉस अगर इंडेमनीफाइड को हो रहा है, मीन्स प्रॉमिसी को हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, तो वहाँ पे कॉम्पेंसेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? इंडेमनीफायर। whose responsibility to compensate sir? Promiser's responsibility is there to compensate in case of loss suffered by promisee। सिंपल है। अगर प्रॉमिसी को कोई नुकसान हुआ है तो प्रॉमिसर ने उसकी भरपाई करनी है और प्रॉमिसर ही इसके लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। उसकी लायबिलिटी बनती है, उसकी प्राइमरी लायबिलिटी है। द लायबिलिटी ऑफ प्रॉमिसर इज प्राइमरी। वो अकेला ही है जिसे ये भरपाई कर। ऑकरेंस ऑफ इवेंट, किस प्रकार का इवेंट होता है तब आपने ये लायबिलिटी यानी कि प्रॉमिसर ने ये लायबिलिटी दी। हादसा होगा तो लायबिलिटी पे ऑफ करनी है, हादसा नहीं हुआ तो कोई लायबिलिटी पे नहीं। नॉर्मली इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बेसिस पे ये स्वरूप के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस पैटर्न, यहाँ आप नुकसान को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस आप एफआई बीकॉम में पढ़ चुके हो। नॉन लाइफ इंश्योरेंस हैज अ रिलेशन विद प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हर साल लेना पड़ता है, अगर आपने लिया है तो हर साल रिन्यू भी कराना पड़ता है। तो जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है उसे हम एक तरीके से इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ही कहते हैं, जहाँ प्रॉमिसर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। और प्रॉमिसी कौन है? पॉलिसी होल्डर। प्रॉमिसी होल्डर जब तक प्रीमियम पे करता रहेगा, हर साल पॉलिसी रिन्यू करता रहेगा, तब तक उसकी वैलिडिटी चलती रहेगी उस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही प्रीमियम पे करना बंद कर दिया सर, सिक्योरिटी चली जाएगी, प्रोटेक्शन चला जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को तभी पे करना होगा जब हादसा होगा। फैक्ट्री का इंश्योरेंस लिया हो तो फैक्ट्री अगर उसमें मान लीजिए फायर इंश्योरेंस लिया हो उसके साथ, तो अगर फायर अकर होगी, आग लगेगी, फैक्ट्री जल के खाक होगी, तभी तो हम क्लेम करने दौड़ेंगे। जब हादसा होगा तभी क्लेम करना है। तो ये टोटली डिपेंड्स, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑकरेंस ऑफ इवेंट। हादसा होगा तो ही परफॉर्मेंस देना है, तो ही प्रॉमिस को कॉम्पेंसेशन देना है। सिंपल है। आखिरी पॉइंट आता है लॉस सफर ड्यू टू प्रॉमिसर्स एक्ट और अदर पर्सन। यहाँ लॉस होना चाहिए, डैमेज या लॉस सफर्ड हुआ हो और वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर की वजह से हुआ हो या थर्ड पर्सन की वजह से हुआ हो। जैसे आपने मान लीजिए व्हीकल इंश्योरेंस लिया हो, तो व्हीकल इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी ने आपके साथ मान लीजिए आपके साथ उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ थर्ड पर्सन आता है, उसकी वजह से नुकसान हुआ हो आपकी गाड़ी, वहाँ पे आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर पाएंगे। या तो प्रॉमिसर की तरफ से कोई हादसा हुआ हो, कोई एक्ट हुआ हो, या कोई थर्ड पार्टी की एक्ट की वजह से हमें नुकसान हुआ हो। एज अ प्रॉमिसी वी हैव सफर्ड लॉस। और ये सब सफर जो हम लॉस सफर कर रहे हैं प्रॉमिसी, या तो प्रॉमिसर की वजह से हुआ हो या तो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ हो, तो ही कॉम्पेंसेशन क्लेम किया जा सकता है। ये इसका आखिरी पॉइंट।